Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. This is the third lecture of kinematics. पिछले lecture में we talked about uniform acceleration motion, उसके examples किए थे, उसके theory और equations of motion पढ़े थे. And today we're going to look at its application to one of the most common situations where uniform acceleration occurs, which is called free fall, motion under gravity. तो उसके बारे में detail में पढ़ेंगे, theory as well as problems. And I hope you're ready for this lecture. Let's go. So, free fall. So what is free fall? Free fall is, जो definition है free fall का, it is motion under gravity. Let me write it here. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ gravitational force लग रहा है body पे, and उसका जो motion होगा, that motion is called free fall. इसमें we are neglecting in the real world जो air resistance होता है, air का force होता है, buoyant force आता है, वो सब हम लोग इस chapter में we are neglecting. So let me just write that down as well. We'll talk a little bit about air resistance later on in later chapters, but in this particular lecture we are completely ignoring it. So there is only one force acting, which is the gravitational force. अच्छा, तो ये जो word है free fall, जो fall word है उसको literally नहीं लेना है. जो English में fall मतलब it falls down, वो वाला fall. But physics में free fall doesn't mean कि it has to go down. Free fall just means motion under gravity. So I can throw a ball upwards. वो ऊपर जाएगा and then वो नीचे आएगा due to gravity. ये तो पता ही है. ये motion is also free fall. ठीक है? Motion under gravity. I throw a ball downwards. It will keep going down till it hits the ground. Free fall. I throw a ball at an angle to land somewhere. Again, free fall. The definition of free fall, English meaning नहीं है. Free fall का मतलब है motion under the influence of gravity. Ball का जो velocity है वो कैसे भी होने दो, ऊपर फेंको, नीचे फेंको, angle पे फेंको, horizontally फेंको, कैसे भी होने दो. The motion, as long as it is under only the influence of gravity, that is called free fall. So all these three are examples of free fall. Alright. So today in particular we are going to talk about vertical free fall, when the ball is thrown up or down. ठीक है. अच्छा, so what is the motion under gravity, मतलब कितना force लग रहा है, कितना acceleration है, उसकी बात करते हैं. So कोई एक particle है, उसका mass अगर m है, so the earth applies a force of m into g vector, the force of gravity is mg vector, where g vector is a constant. तो ये you can say it's experimentally found out, but इसके बारे में थोड़ा और detail में बात करेंगे many months later on when we study the chapter of gravitation. जो पूरे gravitation को के theory को detail में discuss करेंगे, वहाँ पे we will talk about this as well. But now we are going to take it as a fact that the earth applies a force on the body, or on any body, on every body rather. That force is equal to mass of the object multiplied by this constant g vector. So g vector का magnitude is तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसे इक्वेटर और पोल पे अलग अलग वैल्यू होता है, वो सब हम लोग बाद में ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट इज मच लेटर ऑन इन योर सिलेबस. सो दिस वैल्यू यूजुअली इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ वेरी स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड यूजुअली इट इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो क्वेश्चन में बोला जाएगा. एंड कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग सिर्फ वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट द एरो, करेक्ट. सो आई कैन जस्ट राइट दिस एज g इज इक्वल टू द मॉड ऑफ g वेक्टर. तो स्कूल में भी आई थिंक 10th स्टैंडर्ड वगैरह में भी पढ़ते हो, 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो फ्री फॉल. आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सम बोर्ड्स डेफिनेटली हैव दिस. द रीजन आई एम पॉइंटिंग इट आउट बिकॉज वो स्कूल से फिर जब 11th स्टैंडर्ड में आते हो या जेई के लिए पढ़ाई करते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है जी का. स्कूल में पढ़ते हैं जी को पॉजिटिव ले लो, जी को नेगेटिव ले लो, ऊपर फेंका नीचे फेंका, तो वो सब भूल जाओ. जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड वी आर गोइंग टू डू इट प्रॉपर्ली द वे इट इज मेंट टू बी.
we're going to study this free fall properly without any confusion in notation. G पॉजिटिव G नेगेटिव वो सब जो भी स्कूल में पढ़ा वो सब भूल जाओ, ठीक है। मैथ्स याद रख लो, जो मैथ्स सब्जेक्ट, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री सब भूल जाओ। वी ओनली नीड a little bit of mathematics that you studied from school and that you're studying for your J. Okay, ये जो G है, the alphabet G is the magnitude of G vector. तो magnitude क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। So this alphabet G is always a positive number. G को नेगेटिव ले ले, वो सेंटेंस मुझे सुनना ही नहीं, ठीक है। That leads to a lot of confusion, बहुत कचरा हो जाता है इक्वेशन लिखने में। Not necessary, not required. G is the magnitude. Magnitude is positive, simple. All right. Now, if I calculate the acceleration, तो न्यूटन्स, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ यूज कर रहा हूँ, जो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुमको कि acceleration is net force by mass. So acceleration of the body कितना हो जाएगा? Force by mass. तो वो G वेक्टर ही बन जाएगा, करेक्ट। अच्छा, ये G वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बता दिया, पर मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। G vector is vertically downward. So हमेशा G vector is pointing downwards, ठीक है। Now जो vertical word है, तो vertical word is actually defined by G vector. यहाँ पे मैंने vertical G vector के definition में यूज किया, बट vertical का definition में G vector आता है। Vertical is the direction along gravity, and horizontal is the direction perpendicular to gravity. तो इस पॉइंट पे the gravitational force on this marker is downwards, and therefore this line becomes the vertical. और इस vertical के perpendicular एक पूरा plane है ना, ये वर्टिकल जो मार्कर है उसके परपेंडिकुलर, ये फिंगर परपेंडिकुलर है, ये भी फिंगर परपेंडिकुलर है मार्कर के, ये पूरा आई कैन जस्ट रोटेट दिस फिंगर बाय 360 डिग्रीज। सो ऑल दीज डायरेक्शंस आर हॉरिजॉन्टल। सो एट अ गिवन पॉइंट देयर इज ओनली वन वर्टिकल, बट देयर आर इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल पॉसिबल डायरेक्शंस। देयर इज एन एंटायर प्लेन व्हिच इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, ठीक है। सो जस्ट याद रखना, वर्टिकल मतलब हमेशा अलोंग ग्रेविटी। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने जो देखा a वेक्टर इज f वेक्टर बाय m इज g वेक्टर। सो मतलब दिस g वेक्टर इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सपीरियंसिंग ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देयरफॉर दिस g वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन है दैट इज g वेक्टर। Alright, so this G vector is a constant in magnitude, and in direction also it is also vertically downward. तो पूरा एक vector constant है, and therefore the acceleration of the particle is a constant acceleration, and that is why we are talking about this topic as a special case of uniform acceleration, because the motion जो है वो uniform acceleration होगा, and उस acceleration का value कितना है? 9.8 या approximately 10, and direction क्या है? Vertically downwards. Okay, so these are the examples of free fall, and free fall में जो acceleration है वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। Now we can use the equation of motion that we studied in the previous lecture and apply it to some situations of free fall. तो you can just take it down या screenshot ले लो, जैसे भी कर रहे हैं। So now let's look at an example where we are throwing a ball upwards. तो फिर उसका मोशन एनालाइज करते हैं, कितने टाइम बाद वो वापस आएगा, कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। लेट्स टेक अ लुक। सो आई हैव अ सिचुएशन वेयर अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे देखो बहुत सारे डंडे बनाए, स्लांटेड लाइंस। दिस इन फिजिक्स और इन मैकेनिक्स रादर रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। It represents a fixed surface. Optics में this is used as a diagram for mirror, but mechanics में it is used as a representation for fixed surface. ठीक है, तो ये मेरा ग्राउंड है
और स्पीड u से अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, पार्टिकल या बॉल जो भी है, लेट्स से बॉल इज प्रोजेक्टेड, मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास वर्ड है इंग्लिश का, थ्रोन अपवर्ड्स। तो मुझे निकालना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जब तक वो हवा में है, जब तक वो मोशन में है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब द टाइम फॉर इट टू रीच बैक टू द ग्राउंड। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड ड्यूरिंग द मोशन। तो ये दो चीज पहले निकालते हैं, फिर और भी देखते हैं, और कुछ निकाल सकते हैं तो वो भी निकालेंगे। ऑलराइट, सो इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया, rather speed u दिया गया। So first thing in such questions we have to choose the choice of coordinate axis। तो यहाँ पे motion सिर्फ एक one dimension में होने वाला है, straight line में, तो we only need to choose one axis। So let me choose y axis as the vertical axis। choice है कि upward positive y axis लो कि downward positive y axis लो, कुछ भी ले लो, उससे physics is not going to change। So whatever your choices you can take। In fact, I will show you and analyze this problem using both choices of axes, so you can get comfortable with both of them, and you can choose whatever you want। तो पहले तो let me take upward as the positive y-axis। So can I write initial velocity vector is u j cap, correct? What about acceleration? Free fall है, acceleration is always going to be downwards। तो हमने पॉजिटिव y एक्सिस अपवर्ड लिया, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव j कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है एक्सेलरेशन का g, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट एक्सेलरेशन एज माइनस g j कैप। So g is the magnitude, g is a positive number, the alphabet g represents a positive number, minus j cap represents the acceleration का direction which is downwards। ओके, तो क्या पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक चीज है कि काइनेमेटिक्स में टाइम ऑफ फ्लाइट जब पूछते हैं, टाइम फॉर विच इट इज इन मोशन, ऑलमोस्ट ऑलवेज यू विल बी एबल टू डू इट इफ यू लुक एट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज मोस्ट क्वेश्चंस में यू नो द डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्टली द पार्टिकल इज गोइंग टू गो ऊपर और फिर वापस नीचे आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, करेक्ट? इट विल डिसेलरेट डिसेलरेट डिसेलरेट, एक पॉइंट पे इट विल स्टॉप मोमेंटरीली, मतलब उस इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो का, एंड देन इट विल एक्सेलरेट डाउन। बाय द टाइम इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो, है कि नहीं? वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। वही मैं बोल रहा था कि वी नो द डिस्प्लेसमेंट इन मोस्ट सच क्वेश्चंस, यू कैन फिगर आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे वी नो कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो बोलना यार कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा टाइम के निकालने के लिए? सेकंड इक्वेशन, वही तो इक्वेशन है दैट हैज डिस्प्लेसमेंट एट टाइम, करेक्ट? सो कैन आई राइट s is equal to ut plus half at squared, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? सिर्फ जे कैप में हटा रहा हूं तो सिर्फ u लिखूंगा, ut प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी जे कैप हटा रहा हूं तो माइनस जी लिखूंगा। आई एम नॉट राइटिंग जे कैप, ये लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि वी डोंट नीड टू राइट व्हेन देयर इज ओनली मोशन इन वन डायमेंशन। हो गया, देखो एक टाइम तो आएगा t इक्वल टू जीरो, करेक्ट? इसको एक t जीरो ऑब्वियस सोल्यूशन है इसका, तो वो कैंसिल कर दो, और t इक्वल टू 2u बाई जी, है कि नहीं? एक t कैंसिल करो तो बचेगा u माइनस जी टी बाई टू, सॉल्व कर लो, t इक्वल टू u बाई जी। दोनों सॉल्यूशंस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो इनिशियल पोजीशन पे भी तो है। द मैथमेटिकल इक्वेशंस are very good at telling us exactly what we are asking. We are asking when is the displacement zero? The equation knows that the displacement is zero at two instants. एक तो initial position पे zero है ना, तो वो भी तो आंसर देगा, और एक दूसरे इंस्टेंट पे zero है, which is the final instant where the particle returns back to its original position. So that is the answer we are looking for, and therefore this is my time of flight. टू यू बाई जी। यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट जरा नीचे लिख लेता हूं,
So I can have some space on the right hand side. So let me just write it here, t equals 0, or the time of flight is 2u by g. This is my time of flight. So most students remember this because वो question solve करते करते remember हो ही जाता है. You don't have to remember because quite straightforward है derivation. याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो भी okay, but usually याद रह ही जाता है because इतने सारे questions करते हैं by the time JEE comes. Alright, so this is my time of flight. So इतने time बाद the particle is going to return back towards original position. Particle या फिर क्या बोला मैंने? Ball. Ball is going to return back towards original position. Next, what am I asking? The maximum height reached. Maximum height पे velocity कितना है? 0. तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, तुमको एक्सेलरेशन पता है, तुमको फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हाइट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट. विच इक्वेशन? थर्ड, करेक्ट. तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं. सो मैक्स हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as. अच्छा, अब माय मोशन दैट आई एम एनालाइजिंग इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन टू द हाईएस्ट पॉइंट. तो स्टार्टिंग पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट. So let's say this height is h. So from the starting position to the highest point, can I write my displacement vector as h j cap? Upward positive लिया मैंने, है ना. So final velocity 0, initial velocity u, acceleration is minus g. When I write minus g मतलब it is minus g j cap, वो याद रखना आपको. ये सारे y components है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा? y कंपोनेंट विच इज माइनस जी. और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट आएगा? y कंपोनेंट विच इज पॉजिटिव h. तो देखो h का वैल्यू कितना आ गया? u squared by 2g. दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल. अच्छा, तो ये दो चीजें हैं. इफ यू कैन रिमेंबर इट वेरी गुड. यूजुअली याद रह ही जाता है, लाइक आई सेड अर्लियर. मैक्सिमम हाइट. एक और चीज निकालते हैं जो मैंने पूछा नहीं बट निकाल लेते हैं. टाइम ऑफ असेंट. असेंट मतलब ऊपर जा रहा है, डिसेंट मतलब नीचे आ रहा है. सो कितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा, रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट. सो टाइम ऑफ असेंट, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो आई कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन. सो फाइनल वेलोसिटी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस 80 a is minus g, so y component. तो टाइम ऑफ असेंट कितना आ गया? u by g. So maybe you will think कि ये तो सर ऑब्वियस था ना यार, ये ऊपर जा रहा है आधे टाइम, नीचे आ रहा है आधे टाइम, टोटल टाइम 2u by g है, तो उसका आधा ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, आधा नीचे आएगा, है कि नहीं? ठीक है, ऑब्वियस है तो ऑब्वियस है, बट उतना ऑब्वियस नहीं है जितना तुम सोच रहे हो. बिकॉज इन द असेंट वेलोसिटी ऊपर था, एक्सेलरेशन नीचे. इन द डिसेंट वेलोसिटी नीचे था और एक्सेलरेशन भी नीचे. तो दोनों असेंट और डिसेंट में एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन था बट वेलोसिटी ऑपोजिट हो गया, फिर भी टाइम सेम है. ठीक है, इट मे नॉट बी एज ऑब्वियस एज यूर थिंकिंग, बट फिर भी फाइनल रिजल्ट तो वही है जो यू माइट हैव बीन थिंकिंग. टाइम ऑफ असेंट इज हाफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑल्सो इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा, विच वी हैव प्रूवन हियर यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो बहुत कुछ लिख लिया मैंने बोर्ड पे, अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, लिखना है तो लिख लो, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वील गो अहेड. Now I want to show you how we can solve this question by taking downward as a positive y-axis. I want to show you specifically or rather explicitly for this particular problem कि choice of axis does not matter. तुम upward positive लो, downward positive लो, the final physics will not change, final answer will not change. तो देखते हैं. तो अगर मैं downward positive लूँ तो initial velocity vector को मैं क्या लिखूंगा? minus u j cap, correct? Because downward positive है और velocity upward है. Acceleration is downwards, so I can write that is positive g j cap, correct? क्या चाहिए था पहले? Time of flight. तो फिर से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 करता हूँ. बाय द टाइम इट कम्स बैक डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर्ड 0. सो u मतलब माइनस u हो जाएगा. सो लेट मी जस्ट यहीं पे लिख लेता हूँ.
सो u मतलब माइनस यू इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज g। फिर से वही आ गया ना, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2u/g। सेम टाइम ऑफ फ्लाइट है, आना ही था। द चॉइस ऑफ एक्सेस तो अपना चॉइस है, उससे फिजिक्स थोड़ी ना चेंज होने वाला है। और क्या पूछा हुआ है? मैक्स हाइट रीच्ड। मैक्स हाइट रीच्ड के लिए फाइनल वेलोसिटी हमने 0 किया था, तो यहाँ पे हाइट रीच h है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कैसे लिखूंगा? माइनस एच जे क्या, बिकॉज डाउनवर्ड्स पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज नाउ अपवर्ड्स। सो आई कैन राइट थर्ड इक्वेशन, इसमें सब y कंपोनेंट्स आने वाले। सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस यू का स्क्वायर्ड, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव g एंड s इज माइनस h। तो यह माइनस यू का स्क्वायर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो माइनस का स्क्वायर्ड तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर्ड 1 हो जाएगा, और ये फिर भी ये टर्म -2gh ही बचेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन, सॉरी दोनों का साइन रादर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ आवर चेंज ऑफ चॉइस ऑफ एक्सिस। देखो वही आ जाएगा, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट द चॉइस ऑफ एक्सिस डज नॉट मैटर। Ultimately, the final answers that you get for time, height, will all be the same. Okay. I wanted to calculate one more thing. Actually, I wanted to show you one more thing. कितने स्पीड से वापस आएगा वो? What will be the speed with which it strikes the ground? तो इनिशियल वेलोसिटी u है, ऊपर गया, फाइनल वेलोसिटी v बोल रहा हूँ। फाइनल मतलब नाउ द मोशन इज द एंटायर मोशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन बैक टू द इनिशियल पोजीशन। तो थर्ड इक्वेशन यूज करता हूँ, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, और s तो 0 हो गया ना बाय द टाइम इट कम्स बैक, करेक्ट? तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर, तो इसका क्या सोल्यूशन है? v इज प्लस माइनस u, है कि नहीं? दो सोल्यूशंस आए फिर से। तो एक सोल्यूशन इज v इज माइनस u, तो वेलोसिटी इज माइनस u एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। दैट इज व्हाट द इक्वेशन इज मैथमेटिकली टेलिंग अस। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेट 0 किया मैंने, तो वेलोसिटी मुझे कितना निकला? माइनस u। दैट इज द इनिशियल इंस्टेंट ना, इनिशियल इंस्टेंट पे वेलोसिटी इज माइनस u, आई हैव टेकन डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, करेक्ट? तो वो सोल्यूशन तो ठीक है, वो तो पता ही है अपने को। एंड दूसरा जो सोल्यूशन रहेगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव u, मतलब दैट इज द फाइनल इंस्टेंट। वेलोसिटी इज पॉजिटिव u, मतलब पॉजिटिव डाउनवर्ड लिया ना मैंने, तो पॉजिटिव u मतलब u से डाउनवर्ड हिट कर रहा है। सो द पॉइंट और द कंक्लूजन इज दैट द पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम स्पीड एज विथ विच इट वाज लॉन्च्ड अपवर्ड्स। u से लॉन्च किया और फाइनली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिर से u ही रहेगा। सो फाइनल स्पीड विल स्टिल बी u, ठीक है? ऑलराइट, सो लिख लो and then we'll proceed ahead. Now let's do a couple of questions based on what we just studied about a particle being thrown up. देखते हैं. So let's say a ball is thrown vertically upwards. Find the distance it covers in the last 2 seconds before reaching the maximum height. And question बोला जाएगा take g as 10 meter per second squared. ये बोला जाएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है? बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया, फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स इन द लास्ट 2 seconds बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो लेट्स से मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे पहुंचता है, तो लास्ट 2 seconds जो लगेगा उसको बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? देन ऑफ कोर्स उसके बाद वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हम लोग को। So there are a couple of ways to do this. One long way is to assume some initial velocity and then write the equations of motion, probably the second equation, ut plus half at square वगैरह।
टाइम t में लिखो, फिर t-2 में लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो वो एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, because we can use a very nice concept of symmetry here, because we saw that time of ascent and time of descent are equal. ये हम लोगों ने देखा, करेक्ट? तो we are going to use that fact कि जितना ये लास्ट 2 सेकेंड्स में ऊपर ट्रैवल करेगा उतना ही वो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में नीचे ट्रैवल करेगा बाय सिमेट्री. अगर यहां से मैं देखो, ये फिंगर वाली जो लाइन है वहां से देखो मैं, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. तो इफ आई कंसिडर दिस जर्नी बाय द डिसेंट, so अगर डिसेंट कंसिडर करूं 2 सेकेंड्स में, दैट इज इजी टू एनालाइज बिकॉज द डिसेंट स्टार्ट्स विद जीरो वेलोसिटी एट द टॉप. यहां पे तो वेलोसिटी जीरो है, करेक्ट? तो 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? अगर ये s बोल दूं, नाउ इट्स वेरी सिंपल. अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लूं, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस हाफ at स्क्वायर. एक्सेलरेशन अभी पॉजिटिव j कैप में है तो पॉजिटिव g रहेगा. आई हैव टेकन डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, हाफ इंटू gt स्क्वायर्ड, तो हाफ इंटू g10 इंटू टाइम कितना देगा 2 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर्स. दैट्स इट, दैट इज योर आंसर. 2 सेकेंड्स में हाईएस्ट पोजीशन से जितना नीचे ट्रैवल किया 20 मीटर्स, उतना ही वो 2 सेकेंड्स में ट्रैवल करेगा 20 मीटर्स बिफोर रीचिंग द टॉप बाय सिमेट्री. दैट सिमेट्री इज वेरी यूजफुल इन सच क्वेश्चंस टू सेव टाइम एंड व्हिच इज क्रूशियल फॉर द एग्जाम. ठीक है, we have to always look for the shortest approach to a problem because time management is the most important thing on the day of your JEE. ठीक है, I hope you've understood by symmetry ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल रहेंगे. ठीक है, लिख लो. Let's do another question. Particle is projected vertically up at t equal to 0. It is at height h at time t1 and t2. तो दो इंस्टेंट्स पे वो सेम हाइट h पर है. तो यू शुड नाउ फिगर आउट और बी एबल टू विजुअलाइज कि वो कैसे पॉसिबल है. If the particle is at height h at the same instant, देखो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा. So now you should be able to realize कि वो दो इंस्टेंट पे क्यों सेम हाइट पे रहेगा. Once during ascent and once during descent. So t equal to t1 पर वो यहाँ पर रहेगा ड्यूरिंग असेंट एंड t equal to t2 पे वो यहाँ पर रहेगा ड्यूरिंग डिसेंट. क्या पूछा? फाइंड टाइम ऑफ लाइट एंड इनिशियल स्पीड. ठीक है, तो लेट्स से टाइम ऑफ लाइट इज t. एक्चुअली तुम लोग को ट्राई करना है तो कर लो, वीडियो पॉज करके कर लो. यू कैन गिव इट अ ट्राई, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड यू कैन यूज अ लिटिल बिट ऑफ सिमेट्री दैट वी सॉ इन द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल. तो ट्राई कर लो, देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ठीक है, सो हाँ, तो मैंने क्या बोला, लेट टाइम ऑफ लाइट बी t. तो टाइम ऑफ असेंट कितना हो जाएगा? ये टाइम ऑफ असेंट t/2 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा? वो भी t/2 हो जाएगा. अच्छा, फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द हाइट h कितना टाइम लगा? t1. तो ये t1 लगा, तो ये भी t1 हो जाएगा बाय सिमेट्री. अगर इतने पोर्शन के लिए टाइम t1 लगा तो डिसेंट में भी उतने पोर्शन के लिए टाइम t1 ही लगेगा. ठीक है, सो व्हाट अबाउट द टाइम इस जर्नी के लिए? इट गोज अप, कम्स बैक डाउन टू द हाइट h. ये जर्नी के लिए टाइम t1 है, इस जर्नी के लिए टाइम t1 है, लाइक वी जस्ट सॉ. पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T माना, तो ये जो जर्नी है वो कितना हो जाएगा? t-t1, करेक्ट. बट दैट इज नथिंग बट t2. वो डिसेंट पे कब आता है हाइट h पे? टाइम t2 पे. द t equal to t2 इट इज मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल इंस्टेंट. सो इनिशियल इंस्टेंट से मेजर किया, ऊपर गया, नीचे आया, एट t2 इट रीच्ड हियर. बट दैट इज नथिंग बट टोटल टाइम ऑफ लाइट माइनस t1. सो हो गया. So without actually using any equation of motion, we've used the symmetry of the problem. This is the shortest way to do this. Time of flight is t1 plus t2. You could have even used the second equation of motion, h is equal to ut plus half t square लिख के
T1 पे लिखो, T2 पे लिखो, इक्वेट करो, वैसे भी कर सकते हो। वहाँ से U निकल जाएगा पहले, बट दिस इज द क्विकेस्ट वे टू डू दिस इफ यू कैन विजुअलाइज द मोशन एंड यूज अ लिटिल बिट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, फिर तो इनिशियल स्पीड सिंपल है बिकॉज वी ऑलरेडी फिगर्ड आउट, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, करेक्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, तो यहाँ से u भी निकल जाएगा gt/2, और t को तो ये सब्स्टिट्यूट कर लो, तो इनिशियल स्पीड भी आ गया। So I hope you were also able to get this, and probably you might have done it using the equation of motion, which is also fine. But I wanted to show you a different approach where you can use the symmetry of the problem. जहाँ पे भी possible physics में, always see if there is any symmetry. And lots of problems where symmetry is present, especially JEE Advanced does give you problems where symmetry is present. Later on circuits, electrical circuits वगैरह में देखेंगे, वहाँ पे भी symmetry का बहुत बड़ा role है। तो often जब JEE Advanced पे complicated looking problem आता है, there is some sort of symmetry that you can use and shorten the solution. तो देखेंगे, अभी तो just beginning है, we will encounter many such problems. Okay, so you can take it down and then we'll go to the next topic. Now let's look at the concept of dropping an object. तो किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि द इनिशियल स्पीड इज 0 when I drop this marker, तो उसका जो इनिशियल स्पीड था इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन व्हेन वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। If the person is moving and he drops, he or she drops, तो क्या होगा वो मानने पड़ेगा। अभी के लिए इनिशियल स्पीड 0 is good enough definition for dropping। ठीक है, तो let's say an object is dropped from height h, तो क्या क्या पूछ सकते हैं, देखिए आस्क यू टाइम कितना लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड, ये दो चीजें तो पूछ ही सकते हैं। तो पहले ये दो चीजें निकाल लेते हैं। So axis, choice of axis, I'm taking downward as positive, won't make a difference. So downward is positive y-axis. So initial velocity is 0, acceleration would be g, positive g, j cap, correct? So positive g लिख रहा हूँ, it is understood there is a j cap here. और क्या, और displacement will be h, positive again। ठीक है, तो टाइम चाहिए तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लाइक ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम we look at displacement. So can I write displacement is ut plus half at squared, displacement is h, and u is 0, all simple है। Acceleration is positive g, so t would become root 2h/g। Once again you can remember this if you want, usually याद रह ही जाता है when we solve so many kinematics problems। तो time of flight of dropping is root 2h/g। Always remember this formula is only when the particle is dropped from height h, drop मतलब initial velocity is 0। बहुत बार students mistake करते हैं कि they use it in situations where the initial velocity is given the particle is given some velocity initially, तो उस केस में ये use नहीं होगा because we have derived it in the case where u is 0, वो याद रखना। और क्या निकालें, let's also figure out कि कितने velocity से वो strike करेगा। अच्छा, let me just write this is the time of flight। अच्छा, कितने स्पीड से वो हिट करेगा, सिंपल है। सिंपल क्यों है, बिकॉज वी नो इनिशियल वेलोसिटी, वी नो एक्सेलरेशन, वी नो डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल वेलोसिटी निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। सो v स्क्वायर इज 2, u तो 0 है, 2as, a मतलब कितना, पॉजिटिव g, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना, पॉजिटिव h, रूट 2gh से। ठीक है, यहाँ पे अगेन प्लस माइनस आएगा रूट्स, बट नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बिकॉज वी नो दैट द वेलोसिटी फाइनली इज डाउनवर्ड्स, तो वी हैव टू टेक द पॉजिटिव सोल्यूशन because we've taken the positive y-axis to be downwards. So this is the speed with which it will strike the ground, this is the time in which it will strike the ground। ठीक है, ground को strike, when I say it will strike the ground with this speed, मतलब just before striking it will be this speed,
After it hits the ground, what happens is something we will study later on in a topic called collisions. तो वो 3-4 चैप्टर बाद पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो ड्रॉपिंग भी समझ में आ गया, ऊपर फेंका वो भी समझ में आ गया, ड्रॉपिंग भी समझ में आ गया. एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे. ले लो स्क्रीनशॉट है, लिख लो. तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन ड्रॉपिंग. पार्टिकल है, लेट्स से पार्टिकल की जगह कुछ भी सोच लो. लेट्स से कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं. लेट्स से एक आईफोन है यहाँ पर. मेरे पास तो नहीं है आईफोन, किसी के पास होगा तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. एक आईफोन है, इट इज ड्रॉप्ड एंड ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक विंडो है, ये बड़ा सा बिल्डिंग है और ये विंडो है. सो लेट्स से इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 meters above the top of the window. This is my window, and the length of the window is, let's say, 25 meters. ठीक है, तो पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टू फॉर द आईफोन टू क्रॉस द विंडो. मतलब इतना लेंथ जो विंडो का है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा आईफोन को, वो हम लोग को निकालना है. एंड इन ऑर्डर टू कंफर्म द रिजल्ट दैट वी गेट, यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट. अगर आईफोन है तो कर लो, मेरे पास तो नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा. ओके, सो हाँ ट्राई कर लो, एक्चुअली क्वेश्चन ट्राई कर लो, देन लुक एट माय सॉल्यूशन. दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी एबल टू डू using the result that we just got for the time to travel a height h after being dropped. ठीक है, तो what I'm going to do is, because we know the result कि height h ड्रॉप करने पे initial velocity 0 है, तो height h ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g. तो ये रिजल्ट एक्चुअली काफी यूजफुल है यहाँ पर, because what I'm going to do is I'm going to calculate the time from the point of dropping to the point where it reaches the bottom of the window, and I'm going to subtract the time from dropping to the point where it reaches the top of the window. ये जर्नी का टाइम मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम इस जर्नी का टाइम. तो मुझे किस जर्नी का टाइम आ जाएगा, टाइम टू क्रॉस द विंडो. करेक्ट. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट लेबल द पॉइंट्स. लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. तो टाइम फ्रॉम ए टू सी कितना लगेगा, कितना हाइट ट्रैवल किया, 20 + 25 45 मीटर्स ट्रैवल किया है ना. अच्छा, जी को 10 ले लो. यूजुअली यार क्वेश्चंस में नहीं बोला गया तो जी को 10 ले लो, एटलीस्ट मेरे लेक्चर में. और यूजुअली जेई में भी उन लोग जी को 10 ही लेते हैं, बोला जाता है, क्वेश्चन में बोला जाएगा. ठीक है, सो √2 × h कितना, 20 + 25 45 डिस्टेंस ट्रैवल करा ए टू सी, डिवाइडेड बाय जी मतलब 10. तो ये देखो कितना आ गया, 90/10 √9, 3 सेकेंड्स आ गया टू गो फ्रॉम ए टू सी. सिमिलरली ए टू बी कितना, 20 मीटर ट्रैवल करना, सो 2 × 20 डिवाइडेड बाय 10. तो ये कितना आ गया, √4, तो 2 सेकेंड्स हो गया. तो टाइम टू क्रॉस द विंडो मतलब टाइम टू गो फ्रॉम बी टू सी, विच विल बी द डिफरेंस, 1 सेकेंड. सो टाइम टू गो फ्रॉम बी टू सी वुड बी 1 सेकेंड. दैट विल बी योर आंसर. So the reason I picked this question is because I wanted to show you कि कितना convenient हो जाता है to use this result. If you can remember this result, just make sure that this you remember that this is only from the instant of dropping. That is why I had to do A to C, A to B, then subtract. Direct B to C के लिए कोई फॉर्मूला नहीं अपने पास. ठीक है, तो direct B to C अगर निकालना है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, because first you will probably find the velocity at B using the first equation. Then velocity at B will become the initial velocity for B to C. Then again you will use the second equation, solve a quadratic. So that will be long. That's why I showed you this particular example, so that you will know how we can apply this equation. ठीक है, देख लो. एक और क्वेश्चन करते हैं ड्रॉपिंग पे. पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, let's say from a height h
बोला गया इट ट्रेवल्स 45 meters in the last second before hitting the ground. तो फाइंड h, ठीक है. लास्ट सेकेंड एक फेमिलियर फॉर्मूला याद आना चाहिए that we studied in the previous lecture, displacement in the nth second. तो वो वाला यहाँ पे कंबाइन करेंगे इस ड्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट से. That's how we can solve this question. So you can try it out. Pause the video, try it out, then proceed and see if you've gotten it correct. ठीक है. Alright, so like I said, let's say the time, let's say time is n seconds, time of flight. ठीक है. तो इसमें जो n है वो एक्चुअली इंटीजर होना जरूरी नहीं है. जो हमने डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड निकाला था u plus a into n minus half, रिमेंबर. तो इसमें एक्चुअली n इंटीजर होना जरूरी नहीं है. What was this? This was the displacement from t equal to n minus 1 to t equal to n. तो there is no condition where n should be integer. ऐसा लगता है 5th second मतलब 4 to 5, 3rd second मतलब 2 to 3. But you can use this formula for 2.5 to 3.5 also by setting n equal to 3.5. जैसे हम लोग 5th second के लिए 4 to 5 लिखते हैं, n को 5 रखते हैं, करेक्ट. तो अगर 3.5 से 4.5 जाना है तो n को 4.5 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन स्टिल यूज दिस. जो डेरिवेशन में चेक आवर प्रीवियस लेक्चर, डेरिवेशन में वी हैव नॉट used the fact, or rather we have not used any condition, not fact, any condition that n should be integer in our derivation of this. नहीं यूज किया था कहीं भी. ठीक है. तो यहाँ पे हो सकता है द टाइम, टोटल टाइम जो है वो इंटीजर हो या नहीं हो, वी कैन स्टिल यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर द लास्ट सेकेंड. सो लास्ट सेकेंड मतलब मैंने बोला n सेकेंड से टाइम, मतलब t equal to n minus 1 से n, that will be the last second of the journey, correct. तो आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. तो कितना आएगा? 45 शुड बी इक्वल, फिर से यार g को 10 ले लो, मैंने लिखा नहीं बट ऐसा मेंशन्ड अर्लियर, ये लेक्चर में पूरा g को 10 ले लो. सो 45 इज इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ड्रॉप किया है ना, 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है. नाउ हियर अगेन यू हैव टू मेक द साइंस करेक्ट, साइन का ध्यान रखना है. तो यहाँ पे आई एम डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस, एवरीथिंग इज पॉजिटिव j कैप. The acceleration will be positive 10 j cap. Acceleration is 10. तो देखो n का वैल्यू कितना आ गया, 45 by 10 मतलब 4.5 प्लस हाफ मतलब प्लस 0.5, सो 5 सेकेंड्स आ गया. तो ये इस केस में तो इंटीजर आ गया, बट लाइक आई सेड जरूरी नहीं है. हाँ, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ना 5 सेकेंड्स, और टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया तो हाइट तो इजी है. कैन आई जस्ट राइट हाइट इज ut plus half t square, u is 0. So half into gt square, so half into 10 into t square, t कितना निकला 5, तो ये आ जाएगा 125 meters. ठीक है. So I hope you were also able to get it. Once again, I'm trying to combine, I'm trying to do problems that can come in or that are of JEE level. यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंबाइन होते हैं. यूजुअली जेई के क्वेश्चंस में ऐसे ही बनाते हैं उन लोग, क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करते हैं. तो यहाँ पे भी कंबाइन दिस nth सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट विद फ्री फॉल. ठीक है, लिख लो. ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. तो मेरे पास एक लेट्स से बिल्डिंग है या टावर है, कितना हाइट का लेते हैं, लेट्स से 20 मीटर्स लेते हैं. एंड पार्टिकल इज थ्रोन, या कोई बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, विथ लेट्स से स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं. g को 10 ले लेते हैं. तो पूछा गया फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड with which it strikes the ground. ओके, तो दो चीजें पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. वो सिंपल ही है वैसे क्वेश्चन तो.
सिंपल इन द सेंस दैट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना है. यू हैव टू फिगर आउट विच इक्वेशन ऑफ मोशन. जस्ट रिमेंबर टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट. सो यू कैन यूज दैट इक्वेशन एंड तो ट्राई कर लो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट. ठीक है, तो अगर मुझे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो एक्चुअली दो मेथड्स हैं, मैं दोनों बताता हूँ. एक में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरे में नहीं करना पड़ेगा. सो बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड. यू कैन चूज विच वन यू वांट. सो मेथड 1, सबसे पहले तो चॉइस ऑफ एक्सेस ले लेते हैं. कुछ लेट्स से अपवर्ड पॉजिटिव ले लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कैसे भी ले लो. लेट मी टेक चलो डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेता हूँ, ऐसे ही फॉर वैरायटी. सो लेट मी टेक डाउनवर्ड इज पॉजिटिव वाई एक्सेस. तो इनिशियल वेलोसिटी वुड बी -15, मतलब -15 j cap. एक्सेलरेशन वुड बी +10 बिकॉज इट इज डाउनवर्ड. डिस्प्लेसमेंट, अच्छा नॉट डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो इट इज ऑलवेज द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, है ना. द पाथ डज नॉट मैटर, करेक्ट. तो डिस्प्लेसमेंट बस ये लेंथ हो गया. सोचो, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ऊपर कितना भी गया उससे अपने को क्या लेना देना. सो द डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट दिस वेक्टर, डॉटेड बना रहा हूं, दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो वो तो डाउनवर्ड है ना, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया मैंने. तो डिस्प्लेसमेंट इज +20. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है. विच इक्वेशन विल यू यूज टू गेट टाइम ऑफ फ्लाइट? सेकेंड इक्वेशन. सो सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट 20 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². करेक्ट. तो देखो यार क्या इक्वेशन आ जाएगा. I'll get this will be 5t² minus 15t minus 20. तो 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, t² minus 3t minus 4 is 0. तो ये क्या बन जाएगा, t minus 4 into t plus 1, करेक्ट. देखो दो आंसर्स तो आ रहे हैं, t = 4 एंड t = -1 भी आ रहा है. उसका मतलब क्या है वैसे? We will take the positive value, but we should also know what the negative value actually physically means. Let me just write this positive value as थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, 4 सेकेंड. This is my time of flight, this is my answer. वो तो ठीक है, बट जो नेगेटिव वैल्यू है -1, वो उसका मतलब क्या है? See, mathematically what is the equation going to tell us? The equation, ये जो equation लिखा है मैंने, s = ut plus half at², that will tell us the time when the displacement is 20 meters. ठीक है. अब whether the particle is ascending or descending, the equation does not know and does not care. It only cares that the particle is at 20 meters below the original position. ठीक है, below this height it is 20 meters. That is your displacement. That is all the particle cares about. So देखो, particle we set t = 0 at the point of launching. वो हमारा स्टॉप वॉच से हमने सेट किया. ये मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में शायद बताया था. ये हमने स्टॉप वॉच, जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर सेटिंग अ स्टॉप वॉच. व्हेन यू स्टार्ट अ स्टॉप वॉच, दैट इज द t = 0 mark. That is at the point of launching. So ऐसा तो नहीं जरूरी है कि उसके पहले टाइम डज नॉट एग्जिस्ट. टाइम तो हमेशा एग्जिस्ट करता है. तो जहां पे तुमने t = 0 सेट किया, उसके पहले भी कुछ अगर इवेंट हुआ तो दोस विल बी एट t = समथिंग नेगेटिव. समझ रहे हो? इट्स जस्ट लाइक अ नंबर लाइन. तुम t = 0 कहीं भी सेट करो, यू कैन इवन सेट t = 0 एट द फाइनल पोजीशन. तो उसके पहले जो भी टाइम वैल्यूज रहेंगे दे विल ऑल बी नेगेटिव. सो व्हेन यू सेट t = 0 हियर, so the equation does not know what is happening below that. Before that, equation only knows कि as long as acceleration is a constant 10, that means the motion would have been something like this. This is the motion that the equation thinks is happening. Equation को नहीं पता कि वो नीचे बिल्डिंग वगैरह है, उसका तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमने डाला नहीं यहाँ पर, है ना. तो if you set this as t = 0, यहाँ से लॉन्च किया, फिर ऊपर गया, नीचे है, तो t = 4 पर नीचे आएगा. बट इक्वेशन विल थिंक इट 1 सेकेंड पहले इट वुड हैव बीन एट द ग्राउंड लेवल. अगर ये पूरा मोशन होता, अगर बिल्डिंग नहीं होता,
So 1 t equal to -1. आंसर क्यों आ रहा है मुझे? Because the equation will think that 1 second before you launched it, the particle was down and it was traveling up. Then it reached at this point, it went up, it came back down. Equation को ये भी नहीं पता कि ग्राउंड है, उसको लगेगा कहीं नीचे से आ रहा है. I hope सबको समझ में आया why we are getting this value of t equal to -1. That is just because where we have set t equal to 0. Anyway, for our purpose, the answer is the positive number. Of course, we will take t equal to 4 seconds as our answer. और क्या पूछा है? Speed with which it strikes the ground. तो speed, now it's very straightforward. Actually, तुम टाइम निकल गया तो v equal to u plus at यूज कर लो, या अगर पहले ही स्पीड निकालना हो तो v square equal to u square plus 2as यूज कर लो. तो स्पीड के लिए if I use v square is u square plus 2as, तो v square is u square मतलब कितना था u 15 -15 में से उस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 10, डिस्प्लेसमेंट इज 20. कितना आ रहा है? 225 प्लस 400 625. वंस अगेन v का पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों होंगे. वंस अगेन द नेगेटिव वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू द इंस्टेंट वेयर द पार्टिकल वाज गोइंग अप अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल इक्वेशन, जो फिजिकली अपने केस में नहीं हो रहा बिकॉज वो स्टार्टिंग यहीं से था. We are anyway going to choose the velocity which is downwards when it hits the ground, and down matlab positive. So we're going to choose the positive. So 25 meter per second. This is the speed with which it hits the ground. So I hope you've understood how we solve this question. इसमें बस वही चीज़ है जो t को -1 वाला सिचुएशन है वो क्यों आया. अच्छा, वैसे मैंने क्या बोला, 2 मेथड्स है ना टाइम निकालने के लिए. एक और मेथड निकालता हूँ, बताता हूँ, बट आई गेस बोर्ड स्पेस खत्म हो गया. आई डू इट ऑन द नेक्स्ट, आई जस्ट रब द बोर्ड एंड डू इट. तो तुम लोग इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आई शो यू अनदर मेथड विदाउट द नीड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक. हाँ, सेकेंड मेथड भी देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का. सेकेंड मेथड में व्हाट वी गोइंग टू डू इज, इफ यू वांट टू अवॉइड क्वाड्रेटिक, तो देखो, आई कैन राइट the time of flight will be nothing but the change in velocity divided by the acceleration. Correct? ये delta, capital delta, I'm using it as the notation for change. So change in velocity divided by acceleration is time, because acceleration was change in velocity by time. So change in velocity कितना होगा? Initial velocity ऊपर 15 है और final velocity downward है, तो vector subtraction हो रहा है, change. So we are only concerned with the magnitudes here, because I know final time the positive value चाहिए. तो वी ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड्स. तो अगर एक वेक्टर ऊपर है, दूसरा वेक्टर नीचे है, और इनको मैंने अगर बोला सबट्रैक्ट करो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बेसिकली विल बी द एडिशन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स. करेक्ट? ये तो वेक्टर्स में पड़ा हुआ है. तो फाइनल स्पीड कितना आ जाएगा? द फाइनल स्पीड वुड बी, सी इनिशियल स्पीड इज 15, तो कैन आई राइट फाइनल स्पीड, जो एक्चुअली उन्होंने पहले निकाला था, बट फिर से मैं निकाल देता हूँ, u स्क्वायर प्लस 2as. तो ये कितना निकलेगा? 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, तो v 25 आ जाएगा. तो ऊपर 15 से फेंका गया एंड फाइनली इट्स स्ट्राइकिंग द ग्राउंड में 25. तो डिफरेंस कितना हो गया? वेक्टर सब्ट्रैक्शन 40 हो गया. ऐड करेंगे ना हम लोग, तो 40 हो गया. एक्सेलरेशन इज 10, तो 4 सेकेंड्स आ गया. So you might think this is an easier way, whatever you're comfortable with. Usually what happens is as you progress in physics, as you study more and more chapters, energy conservation वगैरह पढ़ते हो, तो ये मेथड एक्चुअली काफ़ी इजी हो जाता है, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ने के बाद ये जो इक्वेशन है 25 मीटर पर सेकेंड, जो रिजल्ट है फाइनल स्पीड का, वो बहुत फटाफट लिख लोगे तुम. दैट विल बी एबल टू गेट इट वेरी क्विकली यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन. एंड वंस यू गेट दैट, देन यू कैन जस्ट राइट चेंज इन वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन. तो एक्चुअली पूरा ओरली कर सकते हो ये. So ultimately I think you will end up using this method, so you don't have to solve quadratic. ठीक है, तो ये time 4 seconds आ गया. That is the method that I wanted to show you here. And एक और question देता हूँ in which you can जहाँ पे time of flight निकालना है, in which you can use this method. ये लिख लो. Let's look at another question. So suppose मेरे पास एक building है या टावर है जिसके टॉप ऑफ द टावर से पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउन और अ बॉल इज थ्रोन डाउन विद लेट्स से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. लेट्स से दिस हाइट इज 30 meters.
तो पूछा गया फाइंड टाइम टू रीच द ग्राउंड. Simple here, but like I said earlier, I want you to use that a method which does not require a quadratic equation. तो एक बार तुम this is like a practice problem for you. Try it out without using the quadratic method to get the time. तो try कर लो एक बार and then check कर लो if you've gotten it correct. ठीक है. So इसमें when it hits the ground, velocity कितना हो जाएगा? See अगर मैं downward positive ले लूँ सब कुछ, y एक्सिस डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो फिर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब पॉजिटिव हो जाएंगे. करेक्ट. तो कितना आ जाएगा? u स्क्वेयर्ड प्लस 2as. एक्सेलरेशन g को अभी 10 ले लेते हैं. सो 10 इंटू एस मतलब 30. तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 2 60 इंटू 10 600 प्लस 100 700. तो ये 10√7 हो जाएगा. ठीक है. और इनिशियल वेलोसिटी कितना? 10. तो हो गया. टाइम कितना आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी 10√7 माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन. So that's the time. So I just wanted to give a practice problem so that you can get used to the method of calculating time without actually having to solve the quadratic equation. अगर quadratic solve करना है, मतलब अगर standard method अगर use करना है तो वो भी कर सकते हो. The displacement will be 30. Downward is positive, y-axis मैंने ले लिया. Initial velocity is 10. और क्या दिया हुआ है? Acceleration तो पता है 10. So can I write ut plus half at square? S is equal to ut plus half at square. तो 30 is equal to 10t plus half into 10t squared. तो ये quadratic solve करो तो फिर final answer यही आएगा. ठीक है. I hope you've understood this method and both methods. You can use whatever you're comfortable with. I prefer this method because it's a little faster for me. तुम लोग दोनों से ट्राई कर लो, देख लो what you are comfortable with. अच्छा, लिख लो. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. सो मेरे पास एक टावर है ऑफ 80 मीटर्स और उसके हाईएस्ट पॉइंट से अब बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद 30 मीटर पर सेकेंड. तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. फाइंड द एवरेज स्पीड बाय द टाइम इट रीचेस द ग्राउंड लेवल. और जी को 10 ले लो. ठीक है, ट्राई कर लो. इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. बस एवरेज स्पीड पूछा है मैंने, थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान से करो. You should be able to get it. Try it out, pause the video, and then take a look at my solution. ठीक है, so let me take downward as positive. अच्छा, पहले क्या पूछा हुआ? एवरेज स्पीड पूछा हुआ है ना. तो स्पीड का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम. तो मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा, नॉट डिस्प्लेसमेंट. And the distinction, the difference between distance and displacement is very important here because the particle is going to take a U-turn. So ऐसे प्रोजेक्ट किया पार्टिकल, ऊपर जाएगा and then it will come back down. So ये तो 80 मीटर्स है. ये अगर हाइट h निकल गया मेरा तो ये भी हाइट h हो जाएगा. My total distance will be h plus 80 है ना. मुझे 80 निकालना है. तो ये तो बेसिक है. If I throw a particle up with velocity u, what is the maximum height it will reach? That should be very straightforward. So can I say highest point पे velocity should be 0, highest position पे. तो 0 is equal to u square minus 2gh, correct? मैंने वैसे डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया, चाहिए तो अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते. चलो, अपवर्ड पॉजिटिव लिया इसलिए एक्सेलरेशन माइनस g आया एंड डिस्प्लेसमेंट प्लस h आया. दैट इज वाई वो प्रोडक्ट माइनस जी एच हो गया. तो आई होप मैं लिख लेता हूँ. चलो, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 है हाईएस्ट पोजीशन पे. इनिशियल वेलोसिटी ये तो यू स्क्वायर है. a विल बी माइनस जी क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव लिया ना मैंने, एंड s विल बी पॉजिटिव h. ठीक है, तो h कितना हो गया? यू स्क्वायर बाय 2g. तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख भी लिया था अर्लियर इन द लेक्चर. हाँ, तो कितना आ जाएगा? इनिशियल स्पीड कितना? 30. तो 900 डिवाइड बाय 20, तो ये हो गया 45 मीटर्स. तो 45 मीटर्स ऊपर जाएगा, 45 नीचे आएगा, फिर से टोटल 80 आएगा. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 45 अप, 45 डाउन एंड देन 80 डाउन टू द ग्राउंड. सो दिस विल बी 170 मीटर.
ठीक है, अभी और क्या चाहिए मुझे? टाइम चाहिए मुझे. सो टाइम के लिए once again I can solve the quadratic, or rather what I would do is I will prefer not solving the quadratic. ये 30 है. By the time it comes back down, speed कितना हो जाएगा? u squared plus 2as. अब डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दोनों डाउनवर्ड है. इस सिचुएशन के लिए अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लूँ, डजंट मैटर तुम अपवर्ड भी पॉजिटिव लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लूँ तो फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए बस डाउनवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सेस ले रहा हूँ. ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना है? पॉजिटिव 10. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? पॉजिटिव 80. Remember, displacement is just the vector from the initial position to the final position. The path taken does not matter. वो ऊपर कितना भी जाए फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है. हाँ, तो देखो कितना आ रहा है. ये हो गया 1600 प्लस 900 2500, तो वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स. सो इनिशियली 30 अपवर्ड्स था, फाइनली 50 डाउनवर्ड्स है. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 80. So the time taken would be the change in velocity by g. ये मैग्नीट्यूड लिखा है बिकॉज टाइम तो पॉजिटिव चाहिए हम लोग. सो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 80 डिवाइड बाय 10, तो 8 सेकेंड्स. आई होप समझ में आया. यू कैन इवन यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट यू हैव टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर. सो आई प्रेफर दिस मेथड. हो गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया. सो स्पीड वुड बी 170 by 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये मेरा स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज 170 मीटर पर सेकेंड, 170 by 8 मीटर per second throughout the journey by the time it reaches the ground. So I hope you've understood these kind of problems. And I've shown you two methods to get the time in such vertical free fall, and you can choose whichever method you're comfortable with. But try out both methods. You should be comfortable with both methods, and then you can pick whatever you want. That's it for today. See you at the top. Good night.